Good morning, students. Once again, to the explain the related topic of the bacteria, that is the types of the bacteria, forms of the bacteria. This is the gram-positive and gram-negative bacteria. We are here to explain that what is the gram-positive and gram-negative, what is the concept is coming from to the gram-positive and gram-negative. First of all, we are going now to the understand about to gram positive and gram negative sense. The scientist Gram in the 1884, the Gram scientist in 1884, which are going into the experiment for that to the bacteria into the laboratory condition and try to find to the observation to the how kinds of the bacteria which are representing in here into the laboratory condition. The Gram which are the one of the scientists is categorized to the bacteria into gram positive and gram negative to the which take to the in the experiment the bacteria into the crystal vial. That is the staining process. In the staining mechanism, the staining mechanism, in the process where the bacteria with the text to the bacteria as experimental material, and that's into the staining processes which place into the staining the crystal violet iodine. Crystal violet bacteria which are stained by to the iodine and to the crystal violet and iodine. Crystal violet and iodine, this is the solution, and that is the place into the bacteria for that to the staining process. After the in the placing to the crystal violet and iodine solution, the Gram which saw that to the some of the bacteria is the purple in color, some bacteria in the purple color, and some of the bacteria, all bacteria is the purple in color. After that to the all the bacteria which purple in color, which washed out with the acetone or the alcohol, with the washed with acetone or alcohol, and after that to the water as well. Washing to the also washed out once again to the water as well, so that to the some of the bacteria is that to the some of the bacteria, and after that in here some bacteria Bacteria is red in color,
and some colorless. After washing with the alcohol or the acetone and rewashed with the water, the some bacteria is red in color, but some bacteria is the purple in color, and some is colorless. Purple in color and some colorless. तो इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, और जिसका जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया का नाम पड़ा है वो ग्राम साइंटिस्ट के नाम के आधार पे पड़ा है, ड्यू टू बिहाफ ऑफ टू द ग्राम in the 1884 which are given to the observation and the staining processes. तो बैक्टीरिया which are staining by to the crystal violet and to the iodine, तो बैक्टीरिया को स्टेन किया गया है क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन से, और सभी जो बैक्टीरिया होंगे वो पर्पल कलर के दिखाई पड़ते हैं। फिर इस पर्पल कलर के जो बैक्टीरिया को एसीटोन या अल्कोहल से धो देते हैं, और धोने के बाद एक बार वाटर से भी उसको साफ करते हैं, धोते हैं, तो उसके बाद जो बैक्टीरिया हमें प्राप्त होता है वो पर्पल ही कलर होता है। जो है यहाँ पे गलती से रेड हो गया था, तो पर्पल कलर ही होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया कलरलेस हो जाते हैं जहाँ पे उनका जो है कलर ही रंगहीन हो जाता है। उसके बाद इनको जो है सैफरीन या फिर जो है फ्यूक्सीन अभिरंजक मतलब स्टेन करते हैं, तो इनको जो है हम क्या करते हैं सैफरेनिन और कार्बोल फुक्सिन में इसको हम स्टेन करते हैं। किससे स्टेन करेंगे? सैफरेनिन से या फिर कार्बोल फुक्सिन से। तो फुक्सिन से या फिर सैफरिन से इसको क्या करते हैं? फुक्सिन FUCHSIN फुक्सिन बोलते हैं। तो सैफरेनिन या फुक्सिन से इसको क्या करते हैं? सारे पूरे बैक्टीरिया को क्या करते हैं? कलर्ड करते हैं। तो उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया पर्पल के थे वो पर्पल ही रहे, और जो कलरलेस थे वो पिंक कलर के हो गए। मतलब क्या हुआ? जो पर्पल थे वो जो है पिंक कलर के हो गए। तो दो प्रकार के बैक्टीरिया। तो यहाँ पे सैफरिन के बाद पर्पल कुछ बैक्टीरिया जो थे वो पर्पल कलर ही रहे, और जो कलरलेस थे वो क्या हो गए? कलरलेस वाले क्या हो गए? वो क्या हो गए? इस सैफरिन या कार्बोल फुक्सिन को डालने पर वो हो गए पिंक कलर में, पिंक कलर। अब ध्यान दीजिए, तो दो प्रकार के बैक्टीरिया हुए। तो ग्राम ने जो पर्पल कलर के रिटेन करके प्रोसेसेस को लगातार कंटिन्यूअस शुरू से लेके एक बार जब इनका जो है क्रिस्टल वायलेट आयोडीन में किया गया था, वहाँ से जब से पर्पल आए वो अपने कलर को रिटेन किए। दैट इज रिटेनिंग ऑफ द कलर अप टू द सम ऑफ द बैक्टीरिया विच आर फर्स्टली सीन इन द पर्पल कलर टू कंटिन्यू एंड आफ्टर दैट टू द staining through the safranin and or the carbol fuchsin, but to the some of the bacteria which after the washing to the acetone and going into the colorless to given to the safranin and or the carbol fuchsin into the pink color. So that the gram which indicating that whose the bacteria is the purple color is the continue, that is called to the gram positive bacteria, and whose the pink in color gram नेगेटिव इन बैक्टीरिया। तो आप देखें यहाँ पे उन्होंने जो पर्पल कलर की बैक्टीरिया था उसको ग्राम पॉजिटिव बताया, और जो कलरलेस होके बाद में पिंक कलर में कन्वर्ट हुआ
सैफरेनिन के देने के बाद वो ग्राम नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का विशिष्ट कैरेक्टर क्या होता है। हम आपको बता दें, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है इसका जो सेल वॉल होता है ये थिक होता है, ठीक है, और जबकि ये जो ग्राम नेगेटिव होता है इसका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है। और थिन के कारण ये जो है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ये पेनिसिलियम, फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने क्लोज की थी, पेनिसिलियम से जो है नष्ट हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जबकि ये जो थिन ग्राम नेगेटिव होता है ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, डिजीज को फैलाता है, और थिन होने के कारण बहुत ही रिजिड होता है, रिजिड होता है, जिसके कारण ये पेनिसिलियम से नष्ट नहीं होता, पेनिसिलियम से नष्ट नहीं होता। और जब नष्ट नहीं होता तो क्या करता है, एक डिजीज को फैलाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज कॉजिंग होते हैं और ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो जो बैक्टीरियल डिजीज में अब आप ज़्यादातर मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि थिनेस्ट सेल वॉल को कंटेन करने के आधार पे जो है हम इसको यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। थोड़ा सा हम डिफरेंसेस को समझते हैं, अलग अलग चीज़ों को समझते हैं। तो सेल वॉल के थिकनेस के आधार पे, जैसे मैंने बोला कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जो सेंस आया जिसके आधार पे है, थोड़ा एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं कि स्टेनिंग जो मैकेनिज्म है वो कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल टू टेक टू द बैक्टीरिया, फॉर दैट टू द स्टेनिंग प्रोसेसेस एंड टू गिवन द क्रिस्टल वायलेट एंड द आयोडीन in the laboratory condition. So some of all the bacteria which are going into the purple color and the purple bacteria which washed out with the alcohol are the also called to the acetone, that is the rewashed with the water. So some bacteria is the purple in color and some of the colorless. So given to the stain to the safranin and or the scarbolfoxin, some is the retaining their color of the purple and some is the colorless, whose the colorless is the pink color. So purple color bacteria is called to the gram positive and to the colorless bacteria is called to the pink gram negative, yeah, the pink color bacteria is called to the negative. So gram positive bacteria is having to the thickest cell wall, so that to the this is destroyed by the penicillium and there are no causing disease. So here to the gram negative bacteria is the thinnest and causing the disease because there are the cell wall is very rigid and all the bacterial disease which are spread into the human beings, that is a gram negative type of the bacteria. तो इस प्रकार से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वहाँ पे डिजीज कॉजिंग एजेंट के रूप में या पे कैजुअल एजेंट के रूप में वहाँ पे होते हैं। तो कुछ हम डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं उसके आधार पे। तो डिफरेंसेस ये देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ग्राम पॉजिटिव डिफरेंसेस इन बिटवीन टू द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो डिफरेंसेस देखते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव का पहला डिफरेंस यही है, ये सेल वॉल। तो कैरेक्टर क्या है, सेल वॉल है। तो पहला कैरेक्टर सेल वॉल है कि सेल वॉल का थिकनेस। तो सेल वॉल का थिकनेस यहाँ पे ये थिक होता है और यहाँ पे थिन होता है, ठीक है, थिक और थिन होता है। तो पूरे बॉडी वेट का ये जो है 20 से 40% हो जाता है और जबकि ये 10 से 20% ही होता है। इस हिसाब से यहाँ पे किया गया है इवैल्यूएट किया गया है और जिसके आधार पे। तो थिक और थिन के कारण जो मैंने कहा कि इनका जो प्रतिजैविक जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो कम होता है और जबकि यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का प्रभाव। दूसरा क्या है देखते हैं हम, एंटीबायोटिक्स का प्रभाव क्या होता है। तो ग्राम पॉजिटिव में एंटीबायोटिक्स का जो प्रभाव होता है वो जो है ग्राम पॉजिटिव में जो एंटीबायोटिक्स का प्रभाव प्रतिरोधी कम होता है
और जबकि जो है ग्राम नेगेटिव में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। मतलब अगर वहाँ पे पेनिसिलियम अगर मेडिसिन के रूप में वहाँ पे दिया जा रहा है तो इनकी जो एंटीबॉडीज क्षमता होती है, प्रतिरोधक जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, वो कम होती है किसमें, ग्राम पॉजिटिव। तो इसीलिए तो वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और अगर वहाँ पे प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है तो इम्यूनिटी एंटीबायोटिक्स द इम्पैक्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स सो दैट टू द इम्यूनिटी जो होती है इनकी वो लेस होती है और इनकी हाई होती है। ठीक है, तो इस आधार पे ये एंटीबायोटिक्स जो का रोल है यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय कर देती है, यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती और डिजीज को फैलाते हैं। इसके आधार पे हम चलते हैं, जो सलवाल होता है उसमें लिपिड की मात्रा देखते हैं। तो यहाँ पे लिपिड की जो मात्रा होती है ग्राम पॉजिटिव में, लिपिड की मात्रा यहाँ पे 4% होती है, 4% के आसपास होती है, जबकि इसमें 4% से बहुत ज़्यादा अधिक होती है, मतलब 20% के आसपास हो जाती है लिपिड की मात्रा। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है सेल वॉल, तो जिसके आधार पे वो रिजिडिटी और डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, ये कारण एक और बन रहा है। इसके आधार पे हम जब देखते हैं कि लाइसोजाइम, जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो, ये जो है लाइसोजाइम एंजाइम के प्रति जो ग्राम नेगेटिव टाइप का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है उसके प्रति कम प्रतिरोधक क्षमता दिखाता है, जबकि प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम होती है, लेस होती है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं इसमें लाइसोजाइम एंजाइम के जो एंजाइम होता है उसके अपेक्षा प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा दिखाते हैं, ग्रेटर होता है इनका, ज़्यादा अमाउंट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए डिफरेंसेस जो आ रहे हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के रिप्रेजेंटेशंस में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जो डिफरेंसेस है वो बहुत है। और इसके बाद हम जो है ये इसमें टिकोइक एसिड जो होता है वो यहाँ पे पाया जाता है, जबकि उसमें एब्सेंट होता है। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड जो बोला जाता है वो होता है TEIS। टिकोइक एसिड जो होता है इसमें टिकोइक एसिड जो है ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। एक अंतर ये भी है। तो कुछ विशेषकर अंतर हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं और जिसके आधार पे हम एक्सप्लेनेशन इसका करते हैं। और यहाँ पे और उसी के आधार पे यहाँ पे जो डिजीज़ है वो ग्राम नेगेटिव के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस आधार पे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का क्या जो है मतलब है। अब हम थोड़ा सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो स्पेशलिटी ये एक बैक्टीरिया में होती है, हर बैक्टीरिया में तो नहीं। एस्क्रेचिया कोलाई जो बैक्टीरिया होती है उसमें प्लाज्मिड पाया जाता है। जब हम अभी एज अ टिपिकल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जब नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे फीचर आएंगे, तो हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं प्लाज्मिड के बारे में। तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो है DNA मटेरियल है उसको देखते हैं और उसका क्या क्रिया प्रणाली है और क्या उसमें कैपेबिलिटी होती है उसको देखते हैं। अब हम जो है एक इसी के अंतर्गत बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत एक विशेष फीचर्स की बात करते हैं प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। और ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया होता है वो उसमें पाया जाता है, लेकिन ये आप कहते हैं सभी एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, कुछ में पाया जाता है। तो जो जिसमें पाया जाता है उसको F पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसमें पाया जाता है प्रेजेंट होता है। P हमने प्रेजेंट के लिए रिप्रेजेंट किया। और जिसमें नहीं पाया जाता
उसको हमने F माइनस ए से रिप्रेजेंट किया। P मतलब प्रेजेंट और A मतलब अब्सेंट। तो बिहाफ ऑफ P प्लस F पॉजिटिव F नेगेटिव। और इसको हम जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस देखते हैं तो उसमें इसको डोनर बैक्टीरिया बोलते हैं और इसको रिसीवर या रेसिपिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं। रेसिपिएंट बैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक है, रेसिपिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं, या फिर इसको मेल बैक्टीरिया बोलते हैं और इसको फीमेल बैक्टीरिया बोला जाता है। ये कैटेगरी बनाई गई है उस दौरान, जबकि क्योंकि सभी इकोलाई में ये नहीं होता। तो मैंने कहा कि प्लाज्मिड जो होता है एक बैक्टीरियल रॉड से बैक्टीरिया है, उसमें पाए जाने वाला एक जो मुख्य उसका गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया के, उसके अलावा एक जो है और भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। ये इंडिपेंडेंट होता, स्वतंत्र होता है और इसका देयर आर नो पार्टिसिपेशन इनटू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड वाइटल एक्टिविटीज ऑफ टू द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में इसका जो है कोई पार्टिसिपेंट नहीं होता, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। इसमें एक रिप्लिकेशन ये स्वतंत्र रूप से रिप्लिकेशन करता है, एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पाई जाती है इसमें। और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया का जो रोल है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, एज अ क्लोनिंग वेक्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपर रूप से। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल और जो है रेप्लिकेशन प्रोसेस की क्षमता और इसका जो है बैक्टीरियल सेल से कोई विशेष संबंध ना होने के कारण इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है आसानी से और इसका प्रोलिफरेशन किया जा सकता है, जिसके आधार पे इसको काउंट करते हैं। तो अब इसको देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो प्लाज्मिड है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है और ये डीएनए का 0.5 से लेके 2% तक जो है 2% तक डीएनए मटेरियल ही होता है। मतलब इस डीएनए का 0.5 से लेके 2% तक पार्ट होता है। इसके बाद जो प्लाज्मिड होता है वो डीएनए से अलग रहते हैं। मैंने कहा द्विगुणन की क्षमता होती है और जीवाणु इसके अनुपस्थिति में भी रह सकता है। और जब ये प्लाज्मिड के कई जो है इसमें गुण होते हैं या फैक्टर के रूप में ये पाया जाता है। जो निम्न प्रकार से ई कोलाई जीवाणु में निम्न प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं। तो एफ फैक्टर, तो एफ प्लाज्मिड बोलते हैं उसको, और फिर जो है आर प्लाज्मिड बोलते हैं, आर फैक्टर, और फिर कॉल फैक्टर बोलते हैं, कोलिसिनोजेनिक। तो एफ फैक्टर, इसको शॉर्ट में एफ फैक्टर बोलते हैं, एफ फैक्टर, एफ फैक्टर। ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी फैक्टर को। मतलब ये जो है लैंगिक जनन में, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं, विच आर हेल्प इन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर्टिकुलरली एज यू कैन से दैट इन द अनदर वर्ड्स टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू द वन ई कोलाई बैक्टीरिया टू अनदर, सो दैट वी आर इंडिकेटिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज द लैंगिक। There are the bacteria, there are two types of the bacteria which present, one is the positive and one is the negative। तो जो पॉजिटिव है वो मेल है, जो नेगेटिव है फीमेल है, या फिर डोनर और रेसिपिएंट। तो यहाँ पे मैंने कहा सब में नहीं पाया जाता जो मेल होंगे, और देखिए एक यहाँ पे एब्सेंट है। जबकि ये क्या है, या फैक्टर जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में जो सेक्स पिली होती हैं, जो फ्लैजेला के बीच बीच में या फेम्ब्री जो पाई जाती है, वो क्या करती है इन दोनों को मिलाने के, जैसे यहाँ पे ट्यूब बनाने का काम करती है, और उसके आधार पे ये आपस में ये ट्यूब से कॉन्जुगेशन ट्यूब बोला जाता है, जो कॉन्जुगेशन रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के अंतर्गत जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है, उसके अंतर्गत ये कॉन्जुगेशन
ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। तो ट्यूब का फॉर्मेशन होने के आधार पे ये जो इसके पास अपना जेनेटिक डीएनए है, लेकिन ये डीएनए नहीं होने के कारण ये रेप्लिकेट होके इसमें चली जाती है। तो ये एफ पॉजिटिव थी, ये एफ नेगेटिव है। अब जबकि इसमें ये चला आया तो ये क्या बन गई, एफ पॉजिटिव टाइप की बैक्टीरिया बन गई। तो इसलिए ये दूसरे फॉर्म की बैक्टीरिया हो गई। तो ये प्रोसेस बोला जाता है कि क्या हो गया, जेनेटिक रिकम्बिनेशन बन गया, ये रिकम्बिनेंट फॉर्म में हो गई। तो इसलिए ये एफ फैक्टर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है मदद करता है। और अब दूसरा है आर फैक्टर, दूसरा है आर फैक्टर। आर फैक्टर क्या करता है, आर फैक्टर रेजिस्टेंस होता है। आर फैक्टर मतलब रेजिस्टेंस। ये क्या करता है, एंटीबायोटिक्स को का गुण रखता है, एंटीबायोटिक्स का गुण रखता है। मतलब या फिर कह सकते हैं कि जैसे ये इस प्लाज्मिड के आधार पे जो बैक्टीरिया प्राप्त करेंगे, आर फैक्टर को रखते हैं रेजिस्टेंस वाला, तो ये किसी मेडिसिन, विशेष प्रकार की मेडिसिन से नष्ट नहीं होंगे, नष्ट नहीं होने की कैपेबिलिटी को शो करते हैं। और तीसरा फैक्टर है कॉल फैक्टर। तो कॉल फैक्टर का मतलब कोलिसिनोजेन होता है, कोलिसिनोजेन जो होता है, कोलिसिन का फॉर्मेशन करेगा, जिससे वो एंटीबायोटिक्स, एक विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करेगी, जो कि इसको नष्ट होने से बचाएगी या प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स बनाने में काम करती है। तो ये तीन फैक्टर प्लाज्मिड के रूप में ये पाए जाते हैं। और जबकि जो प्लाज्मिड मेन जो क्रोमोसोम की तरह काम करता है, तो उसको ईपीसोम भी बोलते हैं, ईपीसोम। जब कब, व्हेन द टाइम अप टू द विच आर वर्किंग एज द मेन क्रोमोसोम के रूप में जब ये काम करने लगेगा, तो इसको ईपीसोम भी बोलते हैं। तो ये कुछ ब्रीफ सिनारियो था या ब्रीफ डिस्कशन था प्लाज्मिड से विच रिगार्डिंग द प्लाज्मिड description, that is the in brief description plasmid, what is the plasmid, F, R and the call, that is the episome. So that to the this topic is closed, and the next topic is the typical structure of the bacteria and their nutrition. That's all.